پتے پتے پھول پھول پتے پتے پھول پھول سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد نور کی آمد اور نور کی آمد ذرا اونچا بولو شرمانا چھوڑو ہاتھ اٹھا کر بولو لب چوم کے بولو گھوم کے بولو اچھے کی آمد سچے کی آمد آقا کی آمد یاسی کی آمد طہا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد صوفہ کی آمد جانا کی آمد دلبر کی آمد آقا کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت منبر نور پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرکار کی آمد کے تعلق سے آپ تمامی حضرات نے بارہویں کا چاند نظر آتے ہی ہمارے اور آپ کے دلوں میں محسن انسانیت سرور کائنات محبوب رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت با سعادت ہمارے اور آپ کے دلوں میں اجاگر ہو جاتی ہیں اور ہر سنی مسلمان اپنے آقا کا جشن ولادت با سعادت منانے کے لیے مچلنے لگتا اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ شاعر ارشاد فرماتا ہے آمد رسول کے تعلق سے حبیبی یا رسول اللہ آپ کا میلاد تو وہ میلاد ہے کہ سب گلی کوچے سبھی کے گھر منور ہو گئے، سب گلی کوچے سبھی کے گھر منور ہو گئے، آپ کیا آئے کہ پہروں پر منور ہو گئے، سب گلی کوچے سبھی کے گھر منور ہو گئے، آپ کیا آئے کہ بہروں پر منور ہو گئے، اور بس زمین تک ہی نہیں محدود ان کا فیض عام نور سے ان کے مہو اختر منور ہو گئے، نور سے ان کے مہو اختر منور ہو گئے۔ ارشاد فرماتا ہے شاعر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے اپنی اس بزم محبت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشنے کے لیے درود پاک کا وسیلہ بنایا جائے۔
اور جس کو اپنے آقا سے جتنی محبت ہے گنبد خضرا کی جانب جی لگا کر سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین آقا نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ تمامی حضرات محب گرامی حافظ و قاری حبیب الرحمان صاحب قبلہ سے آپ تمام حضرات محظوظ ہو رہے تھے اور ساتھی محترم عاشق مستان حافظ غلام نبی صاحب کی حاضری نہیں ہو پائی۔ بہرحال وہ دوسری جگہ چلے گئے، کوشش بہت ہے آنے کی، اگر شرکت ہوتی ہے تو آپ تمام حضرات ان سے بھی نعت و منقبت کے اشعار سماعت کریں گے۔ آئیے آمد رسول کے تعلق سے میں بھی دو تین بند آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تمام حضرات پہ در پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت و شہادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حضرات کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے اور ہر سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر اپنے گھروں پر، اپنے گلی اور مکانوں دکانوں میں، اپنے گاؤں اور محلوں میں چراغاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سرکار کے میلاد کے تعلق سے دو تین شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 12ویں تاریخ آپ جانتے ہیں سرکار کی ولادت کا سعادت کا دن ہے۔ ہر وفادار مسلمان اپنے آقا کی میلاد کرتا ہے۔ 12ویں تاریخ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ بند ملاحظہ کریں۔ 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ گیا، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو ایک زمانے کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، آپ جتنی خوشی منائے کم ہے۔ آقا کی میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، 12ویں تاریخ ذہن میں رکھیں۔ 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ گیا، 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ سرکار کے میلاد کے تعلق سے ملاحظہ کر لیں۔ جس طریقے سے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں ساون کے مہینے میں ہریالی ہوتی ہے تو ہماری نظروں کو بڑا سکون ملتا ہے، ایسے ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو پوری دنیا کے جتنی مخلوقات ہیں سوائے ابلیس کے سارے لوگوں نے خوشیاں منائی اور ان کے دلوں کو سکون مل گیا۔ آپ حضرات ملاحظہ کریں کہ گیس دار جو لہرا رسول اللہ کا، مطلب کہتے ہیں سبحان اللہ، گیس دار جو لہرا رسول
ملاحظہ کریں جس نے آمد رسول اپنے ذہن میں رکھے کہ آمد سرکار کی جب ہو گئی ہر سو خبر، جب سرکار کے میلاد کی خبر ہو گئی سارے لوگوں نے خوشیاں منایا سوائے ابلیس کے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آمد سرکار کی جب ہو گئی ہر سو خبر، ارمات پہ ابلیس کے، مات پہ ابلیس کے، دیکھو پسینہ گیا مارے آمد سرکار کی جب ہو گئی ہر سو خبر، مات پہ ابلیس کے، دیکھو پسینہ گیا بارہویں تاریخ رحمت کا مہینہ گیا، آمنہ کی گود میں شاہ مدینہ گیا۔ اور میرے سرکار کا ولادت کا سعادت ہوتا ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشیاں منائی۔ آپ حضرات اس بند سے ملاحظہ کریں کہ گود میں حضرت کو لے کر یہ حلیمہ نے کہا، مطلب یہ کہیں سبحان اللہ اور کہیں سبحان اللہ، کہ گود میں حضرت کو لے کر یہ حلیمہ نے کہا، گود میں حضرت کو لے کر یہ حلیمہ نے کہا، ہر قیمتی اب میرے ہاتھوں، قیمتی اب میرے ہاتھوں میں نگینا گیا، قیمتی اب میرے ہاتھوں میں نگینا گیا، قیمتی اب میرے ہاتھوں میں نگینا گیا، بارہویں تاریخ رحمت کا مہینہ گیا۔ اور آخری شعر اور آخری بند آپ حضرات ملاحظہ کر لیں، جب میرے سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جانتے ہو ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہاتھ میں اپنے کنکری لے کر آتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ سرکار نے اشارہ کیا، آپ حضرات وہ منظر ملاحظہ کریں کہ چوم کر تلوان بیٹا کنکری کہنے لگے، چوم کر تلوان بیٹا کنکری کہنے لگے، ہر آمنہ کے چاند کے، آمنہ کے
सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले काबिल मुबारकबाद है इस मौजा और गांव के रहने वाले तमाम नौजवान हजरात और पूरे गांव के तमामी हजरात कि आप सबने मिलकर सरवरे कायनात मुहसिने इंसानियत आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मीलाद के मौके पर बज़्ल मुस्तफा का इनेकाद किया है। हजरात मोहतरम, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनमें अज़मत वाले रसूल को पैदा किया। अभी मुझसे पहले अपने खतीब व इमाम और आपके बच्चों के मुदर्रिस आपने इस मौजू पर भी उनसे कुछ आप तमामी हज़रात की समाअत की। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि अगर महबूब और उसकी उम्मत को पैदा करना मकसूद ना होता, महबूब से मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। महबूब से मुराद जिनके जिस्ने विलादत का शहादत की खुशी मना रहे हैं वो है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अगर महबूब और उसकी उम्मत को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने का भी इजहार। तो पता चला कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश, पता चला आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ ले आना यकीनन परवरदिगार आलम ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ना ले आते तो कसम खुदा की परवरदिगार आलम ऐलान करता है, मैं अपने रब होने का भी इजहार। हज़रात मोहतरम, कितनी बड़ी शहादत की बात है। आज हम सुन्नी मुसलमान जिसने विलादत का शहादत मनाते हैं, सरकार की आमद अपने घरों को सजाते हैं, सरकार की आमद पर खुशियां मनाते हैं, सरकार की आमद पर अपनी गली और मोहल्लों को सजाते हैं। तकलीफ दूसरों को होती है। आओ मैं बताऊं, जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद हो रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम इस जहान कीर्ति में भेजना चाहता है तो सबसे पहले जन्नत में हजरत जिब्रील अमीन को बुलाकर ये इरशाद फरमाया, ऐ बुलबुले सिदरा, ये जन्नत में बैठने का वक्त नहीं है, तमाम फरिश्तों को इकट्ठा कर लो। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम बात क्या है? आवाज आती है, बुलबुले सिदरा, मैं अपना महबूब कायनात में भेजना चाहता हूँ, मैं अपने महबूब को जमीन पर भेजना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जन्नत में मेरे महबूब का मीलाद हो जाए। हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा परवरदिगार आलम ने सबसे पहले महबूब का मीलाद फरिश्तों के दरमियान जन्नत में इनकार किया है। आज लोग इतराज करते हैं, मीलादुल नबी पर खुशी मनाना कहाँ से जायज है? मीलादुल नबी मनाना कहाँ पर लिखा है? आओ मैं बताऊं, हजरत आला हजरत फाज़िल बरेली रहमत व रिज़वान की बारगाह में चले, जो हमारे लिए मुजद्दिद भी है, जो हमारे लिए रहनुमा भी है, हमारे लिए पेशवा भी है। एक हमारा मुजद्दिद है, एक एतराज करने वाले का मुजद्दिद है। अशरफ अली से पूछा जाता है, आप सरकार की मीलाद के बारे में क्या कहते हैं? अशरफ अली का जवाब होता है, मुझे सरकार की मीलाद पर कोई अजमत वाली चीज नहीं मिलती है, इसलिए मैंने सरकार की मीलाद पर कोई बात नहीं लिखी है। मगर सब सरकार आला हजरत की बारगाह में लोगों ने अरीजा पेश किया, ऐसे सुन्नत वल जमात के पेशवा, आपका क्या ख्याल है? सरकार की मीलाद के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरे इमाम एक शेर में इरशाद फरमाते हैं, हश्र में डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले बारिश मंजले के लिए गिराते जाएंगे। 1-2 साल नहीं बल्कि 4-5 साल नहीं, मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, हश्र में डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले बारिश मंजले के लिए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अबू जल के मगर हम तो रजा
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। इस सरकार का मिलाद कोई नई चीज नहीं है, ये सरकार का मिलाद परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से भी मनाया है, परवरदिगार आलम ने सहाबा से भी मनाया है, सहाबा ने भी सरकार का मिलाद किया है, तबा ताबईन ने भी सरकार का मिलाद किया है, और परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में ऐलान कर दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये सरकार के मिलाद के ताल्लुक से आयत नाज़िल होती है, इरशाद हो जाता है हमने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनके अज़मत वाले रसूल। आज अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल है। हम अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, अपने गली कूचों को सजाते हैं, और जिस कदर होता है हम सरकार की आमद पर खुशियां मनाते हैं। लोग एतराज करते हैं झंडा लगाना कहाँ से साबित है? आओ मैं बताऊं। हजरत जिब्रील अमीन का इरशाद है, जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद हो रहा था तो मैं जन्नत से 3 झंडे लेकर चलता हूँ, एक पश्चिम में लगा देता हूँ, एक पूरब में नस्ब कर देता हूँ, और तीसरा झंडा काबे मुअज़्ज़मा पर नस्ब कर देता हूँ। तो पता चला जब सरकार की मीलाद पर अशरफुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन झंडा लगा सकते हैं, तो हम गुलामाने रसूल होकर सरकार के मीलाद पर अपने घरों पर झंडा लगाए, सरकार के मीलाद पर खुशी मनाए। ये बिदात कहाँ से हो सकती है? अगर बिदात है तो हजरत जिब्रील अमीन की बिदात इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आए, अगर हमसे हमारे पास गुर्बत के आलम है, रुपए पैसे इतना नहीं है, तो कम से कम एक झंडा लगाकर सरकार की आमद के ताल्लुक से जश्न मनाओ, और ये साबित कर दो कि हम जिब्रील वाले हैं, और सरकार के मिलाद से हमें मोहब्बत है, और सरकार की आमद पर खुशियां। हज़रात मोहतरम, आओ मैं बताऊं, जो लोग मिलादुल नबी के मौके पर खुशियां मनाते हैं, जो लोग मिलादुल नबी के मौके पर गली और कोचों में चरागा करते हैं, जो लोग मिलादुल नबी के मौके पर इकट्ठा होकर जुलूस निकालते हैं, इसका फायदा क्या होता है? एक बुजुर्ग का वाक़या मिलता है, और हमारी जमात में बहुत ही जबरदस्त बुजुर्ग है, उनसे पूछा गया कि आप सरकार का मीलाद किस तरीके से मनाते हैं, आप सरकार की मीलाद पर किस तरीके से खुशियां मनाते हैं? तो उन बुजुर्ग का जवाब मिलता है, और किताबों में आज भी ये बात मिलती है। आप इरशाद फरमाते हैं मेरा ये मामूल था, मेरा ये रवैया था कि हर साल जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आती तो 12वीं तारीख को मैं अच्छे मिठाइयों का इंतजाम करता, घी के लड्डू का इंतजाम करता, और लोगों में उसे तकसीम करता, आका की आमद के मिलाद पर खुशियों का इजहार करता। मगर एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हमारे पास गुर्बत आ गई, गरीबी ने मुझे घेर रखा था, मेरे पास इतना रुपया और पैसा नहीं था कि मैं घी के लड्डू का इंतजाम करता, मेरे पास इतना रुपया और पैसा नहीं था कि मैं लड्डू का इंतजाम कर सकता, मगर सरकार की मिलाद उस वक्त आ गई, सरकार के मिलाद का महीना आ गया, 12वीं तारीख आ गई, मेरे दिल में हिचकोले लेने लगे, मेरे इश्क के जज्बात उभर आए। मैं सोचा हर साल तो मेरे पास फरावाली रहा करती थी, हर साल तो दौलत और रुपया और पैसा रहा करता था, मैं लोगों के दरमियान घी के लड्डू तकसीम किया करता था, मगर इस बार गरीबी ने मुझे घेर रखा है, मेरे पास इतना रुपया और पैसा नहीं है कि मैं सरकार की आमद के ताल्लुक से घी के लड्डू तकसीम कर सकूं। वो बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैंने ये देखा मेरे पास कोई रास्ता नहीं आया, मैं बाजार जाता हूँ, थोड़े से चने ले आता हूँ और उसको भुनवा लेता हूँ, उसके बाद 12वें शब में मैं उस चने को सामने रखकर सरकार के मिलाद की खुशी मनाता हूँ और उसे तबर्रुक समझकर लोगों के दरमियान तस्लीम करता हूँ। इसी इस्लाम में मैं था, मेरी आँख लग जाती है, ख्वाब में मैंने देखा सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आशिक का हाल पूछते हैं। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर साल तो मेरे पास रुपया और पैसा होता था, मैं आपकी आमद पर लोगों के दरमियान भीगे लड्डू तस्लीम करता था, मगर या रसूलुल्लाह अब
अब की तो मुझे गरीबी ने घेर रखा है, मैंने भूले हुए चले आपकी बारगाह में पेश किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिक़ सादी को तसल्ली देते हैं और कहते हैं मेरे आशिक़, तुम्हें घबराने की बात नहीं है। दुनिया के जितने लोगों ने मीलादुन नबी के मौके पर मेरे पास ये तोहफे देते हैं, सब तुम्हारे भूले हुए चले के सदके में मेरी बारगाह में कबूल किए। हमें और आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। एक ही जमात सही, एक ही पंथ सही, एक ही झंडे सही, मगर सरकार की आमद के मौके पर अपने घरों पर झंडे नस्ब करके ये साबित कर दो हमें सरकार के मीलाद से मोहब्बत है। एक बल्ब लगाकर ये साबित कर दो सरकार की आमद के ताल्लुक से हमें खुशी है। एक बल्ब लगाकर ये बता दो कि हम गुलामाने रसूल हैं, हम जिब्रील की सुन्नत पर अमल करते हैं, इब्लीस की सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जगा हिंदुस्तान, जगा हिंदुस्तान, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, मोहम्मदिया, मोहम्मदिया, नारे तकबीर। रब तुम्हारा कुरान में ऐलान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनमें अज़मत वाले रसूल को पैदा फरमाया। अभी आपने अपने इमाम से सुना, अल्लाह ताला ने इंसान को अनगिनत नेमतों से नवाजा है। आप अपनी बॉडी को देख लें, जिसकी एक आंख खराब हो जाती है, अभी 4-5 महीने से मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ अपने वालिद की दवा के लिए, वहाँ जाके देखो तब समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उसकी जिस्म में कितनी नेमतों से नवाजा है। हमें एक किडनी फेल हो जाए, सारी दौलत दे दो मगर वो किडनी सही नहीं हो सकती है। जिसकी एक आंख सही ना हो उससे पूछो कि उस आंख की कीमत क्या होती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कितनी बड़ी नेमत दी है। इंसान अगर अपने जिस्म के नेमत को शुमार करना चाहे तो इंसान अपने नेमतों को शुमार नहीं कर सकता है। ये आंख अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, ये हाथ अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जिसके एक पैर है उससे पूछो कि दूसरा पैर कितनी बड़ी नेमत है, जिसके एक हाथ है उससे पूछो कि उसका दूसरा हाथ उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। जो बीमार हो जाता है उससे पूछो कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। मगर रब तबारक व तआला ने तुम्हें जमीन दिया, इसमें तरह तरह के अनाज उगाते हो, घर और मकान बनाते हो, अपनी जरूरियात को पूरी करते हो, मगर जमीन पर तुमसे एहसान नहीं जतलाया। आसमान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बना दिया, सितारे के टुकड़े तुम्हारे लिए लगा दिया, हवाओं को तैयार कर दिया। ये जमीनों आसमान अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, मगर अल्लाह ताला इन पर एहसान नहीं जतला रहा है। इंसान तरह तरह की नेमतें ले रहा है मगर अल्लाह तबारक व तआला एहसान नहीं जतला रहा है। यहाँ तक कि रब तबारक व तआला ने तुम्हें कुरान दिया, एहसान नहीं जतलाया, नमाज दिया, एहसान नहीं जतलाया, रोजा दिया, एहसान नहीं जतलाया, 1 लाख या 2 लाख नमोज़े अंबियाए किराम को दिया, एहसान नहीं जतलाया। वजह क्या है कि जब अपना महबूब इस कायनात में भेजना चाहता है, रहमतुल लिल आलमीन को इस कायनात में भेजना चाहता है, तो रब तबारक व तआला ऐलान फरमाता है, हमने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनने अज़मत वाले रसूल को पैदा किया। आओ मैं बताऊं, आज मीलाद सिर्फ हम नबी का मनाते हैं। 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। बताओ, कोई हजरत यहिया का मीलाद मनाता है, कोई हजरत यूसुफ का मीलाद मनाता है, कोई अपने बाप हजरत इब्राहिम का मीलाद मनाता है, कोई हजरत इस्माइल का मीलाद मनाता है, किसी और पैगंबर का मीलाद नहीं मनाता है। मगर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आ जाती है तो हमारे दिलों में नबी के मीलाद के लिए मोहब्बत उतर पड़ती है। वजह क्या है? इससे पहले भी अंबियाए किराम तशरीफ ले आए, 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ ले
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद आज नहीं बल्कि मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं अस्र तक ये मीलाद मनाया जाएगा और आसमानी रिसालत ये मीलाद मनाते हैं। वजह क्या है और अंबिया का मीलाद नहीं मनाया जाता है? लोग अपनी पैदाइश का दिन भूल जाते हैं। हम जिस दिन पैदा हुए हमें अपनी पैदाइश का दिन याद नहीं, हमें अपने वालिद की पैदाइश का दिन याद नहीं, मगर एक आशिक को अपने नबी के पैदाइश का दिन याद है और उनकी जश्न विलादत का शहादत का दिन याद है। वजह क्या है? ये उम्मते रसूल अपने नबी का मीलाद मनाती है और जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आ जाती है तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का शहादत मनाने के लिए रुपया क्या है, पैसा क्या है, हम अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आओ ने बताओ, और अंबिया का मीलाद इसलिए नहीं मनाया जाता है, आका का मीलाद इसलिए लोग मनाते हैं और अंबिया पैदा हुए तो अपने उम्मतियों का ख्याल नहीं रखे, मगर जब सरकार की विलादत होती है मेरे आका इस जहाने की दी में तशरीफ ले आते हैं, मेरे आका का मीलाद होता है, आका पैदा होते हैं तो सबों ने ये सुना है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने पैदा होते ही रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। तो ये उम्मत वफादार उम्मत है जो नबी पैदा होते अपने उम्मती को याद करे। भला उम्मती कैसे भूल सकता है? आज हम और आप अपने आका का मीलाद मनाते हैं और खुशी मनाते हैं। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते ही अपनी उम्मत को याद फरमाया, कब्र में भी हमारी मुश्किल कुशाई करेंगे, कब्र में भी हमें याद करेंगे, हश्र में भी हमें याद करेंगे। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी विलादत पर खुशी मनाई, जिसने मेरी विलादत पर खुशियां मनाई, यकीनन वो मेरा गुलाम है और उसे मुझसे मोहब्बत है। हज़रात मोहतरम, हमें और आपको चाहिए जब मीलादुन नबी का महीना आए तो कम से कम 1 रुपया ही सही मगर नबी के मीलाद के ताल्लुक से उसे मीलादुन नबी के मौके पर खर्च कर दे। आओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जिसने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद के मौके पर 1 दिरहम खर्च किया और मीलाद के मौके पर खुशी मनाई तो रब तबारक व तआला 1 दीनार खर्च करने के सदक़े में उसे